Good evening to all. Welcome to Career Defense School. Students, in today's lecture, we are going to discuss about RAMC exam 2022, जो कि कल ही हुआ है December 3rd को. Okay, we'll discuss the English portion of this paper here. So, पेपर काफी इजी था, बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था, काफी सिंपल पेपर आया है. हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे फर्स्ट. In section A, we have reading comprehension. And ये काफी obvious था reading comprehension, which is about our new education policy. That education is a fundamental need and right of everyone now. ठीक है, जो ये changes आ रहे हैं उसके regarding हमारा जो है ये passage था. Correct? In order to achieve our goal and help develop a just society, we need education. Similar education plays a great role in the development of a nation. As we are facing a major change in terms of knowledge globally, the government of India approved the National Education Policy 2020, जो कि अभी recently जो है approve हुई थी, right? This essay on New Education Policy 2020 will help you learn how this new policy has replaced the National Education Policy 1986 that was 34 years old. काफी पुरानी थी वो, है ना? This new policy has the aim to universalizing education from preschool to secondary level. It planned to do that with the 100% GR. GR matlab gross enrollment ratio in schooling. The plan is to achieve it by 2030. This education policy 2020 will highlight the following changes. Firstly, the policy proposes the Open Indian Higher Education in Foreign University. It aims to introduce a 4 years multidisciplinary undergraduate program with various exit options. ये काफी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है जिससे हमें बहुत एक्सपोजर मिलता है ऑफ कोर्स. ठीक है, thus this new policy will strive to make the country a global knowledge superpower. Then, similarly, it also aimed to make all university and college multidisciplinary by the year 2040. Finally, the policy aimed to grow employment in India and also bring fundamental change to the present educational system. This policy gives an advantage to students of classes 10 to 12 by making the board exam easier, of course. In other words, it plans to test the core competency instead of mere memorizing the fact. It will allow the student to take the exam twice. दो बार होते हैं ना इसमें. Further, it proposes that an independent authority will be responsible for regulating both public and private schools. Similarly, the policy aims to diminish any separation between the education stream and vocational stream in the school. There will also be no rigid division between extracurriculum. Vocational education will bring at class 6. Of course, यहाँ से क्या internship start होते हैं with an internship. ठीक है, क्लास 6 से स्टार्ट कर देते हैं. इनका मानना है कि 6 से इनका इंटर्नशिप मतलब जो भी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं उसी को यहीं से हम क्या है कंटिन्यू कर सकेंगे. However, we may consider few disadvantages of NEP, National Education Policy 2020. Firstly, it can make the education system expensive. हर किसी के बस का रोग नहीं रह जाएगा ना, काफी एक्सपेंसिव हो जाएगी. Meaning to say, admission to foreign university will probably result in this. Of course, foreign में admission लेना is a task. Further, it will create a lack of human resources. कुछ advantage और कुछ disadvantage तो है ना? If we look at the present elementary education, we notice that there is a lack of skilled teachers. Thus, keeping this in the mind,
keeping this in mind, the National Education Policy 2020 can give rise to practical problem in implementing the system. That is for elementary education. Finally, there is also the drawback of exodus of teachers. In other words, admission for university ultimately result in our skilled teacher migrating to other university. जो अच्छे होंगे वो दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी जा सकते हैं, फॉरेन में भी जा सकते हैं. To conclude, we can say that this policy is an essential initiative to help in all round development of our society and country as a whole. However, the implementation of this policy will greatly determine its success. Nevertheless, with a youth dominating population, India can truly achieve a better state with the proper implementation of this education policy. काफी interesting passage हमें मिला, right? काफी interesting passage था. Now we have questions. ठीक है, तो देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग हमने पढ़ा काफी इस पैसेज के रिगार्डिंग, राइट. लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चंस. तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द टर्म अ मेजर चेंज इन टर्म ऑफ नॉलेज ग्लोबली. कि क्या क्या मेजर चेंजेस जो हैं हमारे जो एनईपी के जो लागू होने के बाद क्या क्या आ रहे हैं इन द सोसाइटी. ठीक है, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट there is a sudden change in the education methodology. For this very reason, India has launched NEP, means National Education Policy. Second question is, what do you understand by universalization education for preschool to secondary level? मतलब क्या मतलब इसका preschool से universalizing करने का education को from preschool to secondary level का. It means government plan to achieve 100% GER, जो मैंने बताया था, gross enrollment ratio in schooling, and various other policies to make India a global knowledge superpower. Of course, India को एक सुपर पावर बनाने के लिए ग्लोबली. ठीक है, ये काफी इनिशिएटिव बहुत अच्छा था. All students of the age group 6 to 15 are provided education in school free of cost. Correct? Students, this actually ये काफी बड़ा था तो लिखा नहीं है, so you can listen carefully so that कि आपको आंसर का समझ आए कि क्या हमें exactly इसमें लिखना था. ठीक है, how will this policy make India a global knowledge power? कैसे इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज पावर जो है इस पॉलिसी के थ्रू बन सकता था. तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी विल मेक इंडिया ग्लोबल नॉलेज पावर बाय प्रोवाइडिंग एक्सपोजर for higher education in foreign university to Indian students. Of course, Indian student को एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलता है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी जाके वो क्या है स्टडी कर सकते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी इंडिया में आ सकते हैं हमारे लिए, है ना. In what at all way will testing change under this policy? क्या चेंजेस आ रहे हैं इस पॉलिसी के चलते हुए? सो डी का आंसर बन रहा है, which gives advantage of 10th to +2 classes. In 10th और 12th तक जो क्लासेस हैं स्टूडेंट बाय मेकिंग द बोर्ड एग्जाम इजियर, उनके लिए इजी हो जाएगा. फर्स्ट जो बहुत ही बड़ा चेंज है वो क्या है, प्रमोटिंग द स्किल्स एंड कोर कॉम्पिटेंसी रादर मेमोराइजिंग द फैक्ट. सेकेंड जो है, इट विल ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट टू टेक एग्जाम ट्वाइस, 2 बार एग्जाम देने का उनको क्या है जो एक चांस मिल जाता है ना. नेक्स्ट, differentiate between education stream and the vocational stream with reference to this passage. इस passage के reference से educational stream and vocational stream का क्या difference है? vocational stream होती क्या है? based on internship, जो कि क्लास 6 से बोलते हैं कि स्टार्ट कर देंगे अगर ये पॉलिसी लागू हो रही है तो, which allow sharpen the skill by practical work. अगर क्लास 6 से हम कोई प्रैक्टिकल वर्क करना स्टार्ट करेंगे सो ऑफ कोर्स हम उस चीज के तो मास्टर बन जाएंगे ना. एजुकेशन स्ट्रीम आर डिपेंडेंट ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज ओनली. प्रैक्टिकल में कब जाते हैं, जब हम काम करने निकलते हैं, करेक्ट, तब तक इंटर्नशिप हमारी नहीं होती है. हाउ डज एनईपी 2020 मेक एजुकेशन एक्सपेंसिव? ऑफ कोर्स हमने बताया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का इसमें रहेगा एनरोलमेंट, है ना, तो ये एक्सपेंसिव रहेगी. बाय इंट्रोड्यूसिंग द वोकेशनल स्ट्रीम एंड इंटर्नशिप फ्रॉम क्लास 6 grade, of course this will make it costly from the diverse income group.
अलग अलग लोगों के लिए, हर एक के लिए एक जैसा नहीं रहेगा, सब पे इसका अलग अलग इम्पैक्ट हमारा रहेगा, है ना? करेक्ट. एंड इवन सम माइट बी नॉट बी अफोर्ड इवन एबल टू. करेक्ट. देन हाउ डज एनईपी 2020 मेक एजुकेशन एक्सपेंसिव हो गया हमारा. देन जी का करते हैं. हाउ विल द लैक ऑफ स्किल टीचर इम्पैक्ट द सक्सेस ऑफ एनईपी 2020. Skilled teacher are directly professional to the quality of education and that student will get, which in turn will have a huge impact on any, of course, है ना बेटा? Then next question देखते हैं. Question number H जो है, will the skill teacher affect, ये हो चुका है. Then I क्या रहेगा? What is the one factor that truly determine the success of this? क्या सबसे ज्यादा फैक्टर जरूरी है? सबसे ज्यादा जरूरी फैक्टर इम्प्लीमेंटेशन ही है. अगर अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो पॉलिसी ऑफ कोर्स एक अच्छी सक्सेस को हासिल करेगी. करेक्ट. देन क्लियर बच्चे? इज इट क्लियर? ओके. ओके बच्चे. क्वेश्चन नंबर जे जो है हमारा, ओके, पूछा क्या गया है? गिव एंटोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. अच्छा, एंटोनियम पूछा गया है. सो फर्स्ट एंटोनियम बड़ा इजी पूछा है इन्होंने, मल्टी डिसिप्लिनरी. मल्टी डिसिप्लिनरी का क्या रहेगा? जो कि बहुत फ्लेक्सिबल होता है. अगर इसका ऑपोजिट देखें तो इनफ्लेक्सिबल हो गया, फर्म हो गया, रिजिड हो गया. राइट. देन हमारा है एक्सोडस. एक्सोडस होता है यहाँ से जगह बाहर की तरफ जाना, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा अराइवल. ऑपोजिट, ऑफ कोर्स ऑपोजिट इटसेल्फ इज द एंटोनियम ऑफ एक्सोडस. राइट. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास है होम. ओके. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो है ये है रीडिंग. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑफ पोएम. सो पोएम में हमारे पास कुछ ज्यादा समझने वाला नहीं है, बहुत इजी सी पोएम आई है. ठीक है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स हम देख लेंगे. पहले पोएम को एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या एग्जैक्टली पूछा गया है हमसे. सो विल स्टार्ट विद, आई आस्क्ड देम टू टेक अ पोएम एंड होल्ड इट up to the light like a color slide. Correct. And press an ear against its ear. I say drop a mouse into a poem and watch him probe with the way out or walk inside the poem's room and feel the walls for a light to which I want them to for a ski across the surface of the poem, waving the author's name on the show, but all they want to do is tie the poem to a chair with rope and torture a confession out of it. They begin beating it with a horse and find out what it really means. बहुत ही सिंपल सी पोएम है. इसमें दो एस्पेक्ट दिए हैं, एक पोएम का पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. पॉजिटिव एस्पेक्ट यहाँ से यही तक है खाली, कि एग्जैक्टली पोएम को कैसे अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, जो उसमें प्लेजर दिखाया गया है, एक अच्छा मूड या जैसा भी मूड है उस मूड के साथ उसको अंडरस्टैंड करो. बट व्हाट एग्जैक्टली विल डू ना, विल टॉर्चर अ पॉइंट. हम उसमें से मीनिंग निकालने लग जाते हैं कि जो नहीं भी है, लिटरल मीनिंग भी खोज खोज के. करेक्ट. इस पे डिपेंडेंट हमारी होल में बच्चे. सो our first one is name two images that stand out to you after reading the poem above. दो इमेजेस के कौन से नाम बताने की, कौन सी इमेज आपके सामने आ रही है व्हेन यू रीड द पोएम. सो फर्स्ट इमेज दैट कम इज पोएम शुड बी फेल्ट एंड अंडरस्टूड. पॉजिटिव इमेज है ना, कि भाई जैसी है उसको वैसे उसको फील करो, अंडरस्टूड करो. सेकंड क्या है? द रियलिटी, व्हाट एग्जैक्टली विल डू विद द पोएम. राइट. नेक्स्ट, what is your emotional reaction
to the poem and why do you choose that emotion? कि क्या है? पहला तो जो इमोशनल रिएक्शन जो हमारे सामने आता है विच इज अ प्लेजेंट टोन, सिंपली। लास्ट में हो जाता है थोड़ा नेगेटिव, बट ऑल इन ऑल द पोएम इज प्लेजेंट। ठीक है, ऑफ कोर्स हमें इसको फील करना है। देन आइडेंटिफाई द लाइन फ्रॉम द पोएम एंड स्टेट टू पोएटिक डिवाइसेस। काफी सारे पोएटिक डिवाइसेस है इसमें, बट हमसे दो पूछे गए हैं, सो बेसिकली हम दो डिवाइसेस को हाईलाइट करेंगे। फर्स्ट है सिमिली एंड सेकेंड इज इमेजरी। सिमिली इज, सिमिली आ रही है इसमें। I'll read the line for you. I asked them to take a poem and hold it up to the light like a color slide. Right? Next है imagery. So I drop a mouse into a poem. Correct? As I drop a mouse into a poem. This is imagery. Correct? Next. Okay. What do you what do you think is the theme of the poem and why? कि जो पोएम का थीम क्या है, आप क्या समझते हैं? फर्स्ट जो बेसिक थीम है is to show the correct way to understand the poem because in present word it is opposite of it. थीम तो वही है ना, जैसा पोएम गिवन है उसको वैसे समझो, बट विल नॉट डू एग्जैक्टली एक्चुअली। तो थीम इसका यही है। Explain the meaning of torture a confession with reference to the poem. Torture a confession means hard try करना उससे आंसर निकालने का। ठीक है, we'll always follow the literal, we'll always follow the literal sense of a poem. Correct? According to the poet, what is the real goal of reading poem? Real goal बहुत easy है, अब तो समझ आने लग गया होगा ना, इतना आंसर हमने कर लिए कि just to understand the poem. Real goal क्या है? Develop an imaginary world and power of a reader. ठीक है, इमेजिनेशन की पावर को डेवलप करना। करेक्ट? होपफुली हमारा जो ये रीडिंग पोर्शन था काफी इजी आया था। उसके बाद हमारे पास आ जाता है राइटिंग सेक्शन, जिसमें हमारे पास आते हैं लेटर राइटिंग। लाइक यू आर साहिल, ये शालिनी नेम आपको गिवन है, और रेजिडेंट ऑफ मंगल विहार कॉलोनी, कलकत्ता। यू आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब बाय द severe commercialization in the of the festivals celebrated in the country. ठीक है, उस पे आपको क्या है, एक एडिटर को एक एडिटर भी बताया था हिंदुस्तान एक्सप्रेसिव। ठीक है, उनको आपने क्या है लेटर लिखना है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपको एक टॉपिक गिवन है, ऐसे लिखना है स्कूल। ठीक है, टीच स्टूडेंट टू बी ग्लोबल सिटीजन इंस्टेड ऑफ इंस्टॉलिंग नेशनलिज्म। ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए उनको मतलब प्रमोट करना चाहिए। काफी इजी आया है बेटा, राइटिंग सेक्शन हमारा काफी इजी था। ठीक है, बहुत ही इजी। पिक्चर देख के आपको क्या है, स्टडी द पिक्चर बिलो एंड राइट अ स्टोरी। पिक्चर देख के हैंडीकैप्स की आपको एक इमेज नजर आ रही है, राइट, जो कि काफी कुछ क्लियर कर रही है। अब आप उनके बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में एक अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, राइट। देन बच्चे, हमारा एक मेजर पार्ट स्टार्ट होता है विच इज सेक्शन सी, इट्स ऑफ ग्रामर। करेक्ट? सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द ग्रामर पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हमें गिवन है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस, जो मैं बार बार बात कर भी रही थी कि एरर नहीं आएगा ही आएगा, राइट। सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, तो यू हैव टू फाइंड द आंसर कि करेक्ट एरर कहाँ पे है। एरर फाइंड करना है एंड देन जस्ट क्लिक ऑन दैट। शी इज वन ऑफ द least important person in the office. So error is second. Very easy. Hardly had he, hardly had the teacher left the room. Then the people started enjoying. Error बहुत ही क्लियर है। हार्डली इसका इधर वेल लगता है, देन लगता है नहीं है। थर्ड, वेरी इजी, राइट। देन सी, the then client chairman has issued the then this is an error. Okay, पहली लाइन पढ़ती क्लियर है। Then she walking hurriedly, correct, she walking hurriedly mean that
शी वॉज इन रिगिंग रश और नो एरर। डी में क्या है, शी वॉकिंग नहीं था, शी इज वॉकिंग हो गया, हमें ऑक्सिलरी चाहिए, फर्स्ट इज एन, राइट। देन द चीफ सेड दैट he did not want taking action without listening to the he did not want taking action without listening to the reporter's version. क्लियर दिख रहा है, लेकिन में एरर है ना, बहुत ही ज्यादा इजी एरर फाइंडिंग आए थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 बच्चे, विच इज फिल इन द ब्लैंक। सो इन फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वी थॉट ही वॉज बेनिवोलेंट but his action proves he was quite dash. We thought he was benevolent, but his action proved he was benevolent का opposite देख लो, selfish हो गया ना, ठीक है, correct, A answer. Then I visited my village dash to see my aged grandparents. Adverb fill करना है. I visited my village usually to see my aged parents. भी कर सकते हैं अक्सर, है ना. There is no dash in pursuit of knowledge. There is no dash in pursuit of knowledge. So answer is satiety. ठीक है, बहुत था संतुष्ट, है ना, संतुष्टि जिसको हम बोलते हैं, सेटिस्फेक्शन. A hockey tournament has been organized dash Jaipur. Preposition से आया टॉपिक, ये क्वेश्चन हमारा. One of the most affluent town dash Rajasthan and known as a pink city dash the country. सिंपल, जयपुर बिग सिटी, टाउन जो राजस्थान है, स्टेट, दोनों के साथ इन लगता है. अगर दोनों के साथ इन लग रहा है, क्लियर कट आंसर नहीं बन रहा हमारा कि हॉकी टूर्नामेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन जयपुर एंड ऑफ द मोस्ट affluent town in Rajasthan and known as the pink city of the country. It's very easy. Then हमारे पास आता है E, dash rain in Kedarnath cause flash in the upper region of Uttarakhand. So our answer is tropical. हाँ जी, a dash is a A dash is a multi-purpose scoring guide for assessing students' product and performance. What is the multi-purpose scoring guide? Report card, simply, right? तो हमारा आंसर बन जाएगा रिपोर्ट कार्ड. और dash is a way in which men and women are treated or behave differently in society. ठीक है, either their with their own gender or with each other. क्या है, जेंडर डायनेमिक्स है. करेक्ट आंसर हमारा. नेक्स्ट, ओके, मैच करके हमें आंसर फाइंड करना है. सो मैच करने के लिए हमें मीनिंग पता होना क्वाइट वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. सो फर्स्ट हमारा है एब्सोल्यूट, मतलब टू द एक्सेंट फुल. ठीक है, टू द एक्सेंट फुल, इसका हमारा क्या हो जाएगा, सी, एब्सोल्यूट का कंप्लीट. ओके, ऑब्सोलीट मतलब पुराना, करेक्ट, इसका हम कर सकते हैं ए. देन एब्सॉल्व, एब्सॉल्व मीन्स दोष मुक्त. ठीक है, सो इसको हम मैच करेंगे डी से, क्वाइट. देन obstinate मतलब जिद्दी, सो stubborn. तो हमारा आंसर बन रहा है बेसिकली थर्ड. फर्स्ट का सी, सेकंड का ए, थर्ड का डी,
एंड फोर्थ का बी। करेक्ट। देन हमसे पूछा गया है सिनोनियम, सिनोनियम ऑफ डिबेस्ड, सिनोनियम ऑफ डिबेस्ड, डिबेस्ड का सिनोनियम क्या है? दीदी क्या कर रहे? सो डिबेस्ड का हमें सिनोनियम बताना है। Synonym of debased is similar meaning means, okay, so it is corrupted. ठीक है, राइट, वेरी इजी था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। करेक्ट, हमारे पास सेंटेंस है इम्प्रेसिव डिस्प्ले और रेंज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग, किसी चीज का बहुत इम्प्रेसिव डिस्प्ले, ठीक है ना, तो उसे हम कहते हैं एरे। फोर्थ, ओके, नेक्स्ट, फोर वर्ड्स आर गिवन out of which only one word is spelled incorrectly. Choose the incorrectly spelled word. सिर्फ इनकरेक्टली वर्ड बताना है। हमारे पास तीन जो है बिल्कुल करेक्ट है, सिर्फ एक जो है इनकरेक्ट है। नीड टू फाइंड ओनली दैट वन। रॉन्गली स्पेल्ड एक्सप्रेशन। ओके, ये हमारा जो है एक्सपेक्टिया जो है, ये है हमारा रॉन्ग स्पेलिंग। ठीक है, करेक्ट एक्सपेक्टिया हो सकता है, जिसका मतलब होता है मेक अमेंडमेंट और reparation for guilt, EXPIATE, right? Then insur insurrection incineration has been used for decades. Breckman words given as a magic bullet solution for disposing otherwise persistent waste material. Question क्या है? Choose the appropriate option to replace the bracketed phrase. Appropriate option हमने choose करनी है bracketed space. Disposing को हम थ्रो ऑफ कर दे सकते हैं ना, तो डिस्पोजिंग ऑफ कर सकते हैं। फोर्थ, एज अ मैजिक बुलेट सॉल्यूशन ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ अदरवाइज। करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर एम, जंबल वर्ड है। जंबल वर्ड मतलब हमें पूरा पूरा सेंटेंस दिया है, वी नीड टू क्रिएट अ मीनिंगफुल, मतलब पैरा क्रिएट करना है। सो गिवन है हमारे पास कि द फर्स्ट रूलर ऑफ द गॉड वाज यूरेनस, द पर्सोनिफिकेशन ऑफ द स्काई। देन हमारे पास है पी, he was unmarried to Gaia, the goddess of earth. After the prophecy, जो में दिया है, after the prophecy that his children would overthrow him, the original ruler of the world, hide his children inside their mother, Nikki Earth. Gaia hated him for this. Uranus had 12 children with Gaia. The children of the sky and the earth were known as the ancient source as the Titans. थोड़ा मीनिंगफुल अगर आंसर बनाना है हमें, तो हमारा बनता है बच्चे सेकंड, मस्ट बी दैट ही वाज मैरिड टू गॉड। हाँ, देन एस, यूरेनस के कितने बच्चे थे? 12 चिल्ड्रन थे विद गाया, द चिल्ड्रन ऑफ द स्काई एंड अर्थ वर नोन एज एजेस फोर्स एज द टाइटंस। ठीक है, देन क्या हुआ आफ्टर द प्रोफेसी, क्योंकि फिर प्रोफेसी हुई, देन एंड ही हाइड द चिल्ड्रन। ठीक है, देन गाया हेटेड फॉर दिस। आंसर सेकंड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है बच्चे? क्वेश्चन नंबर एन। एन का हमारे पास है सिलेक्ट द वर्ड सेगमेंट दैट सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस द ब्रैकेटेड वर्ड सेगमेंट करेक्टली एंड कंप्लीट द सेंटेंस मीनिंगफुली। द select the option no correction required if the sentence is correct, ठीक है, as given। तो हमारे पास सेंटेंस क्या है? ग्रैंडमा ब्रैकेट में दिया है ask us where were all of you last night। तो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क रिक्वायर्ड है यहाँ पे, पूछा गया है ना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर, सिंपल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है फोर वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली टू वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। चार वर्ड गिवन है,
ठीक है, एक ही करेक्ट स्पेल्ड है, कौन सा? तो देखें तो इसमें से हमारा आंसर बन रहा है सेकंड, साइमल्टेनियस, क्योंकि किसी में कोई सा अल्फाबेट मिसिंग है, किसी में कौन सा। सो सेकंड इज द करेक्ट आंसर, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 10, टेंशन टेंस है रिलेट, क्वेश्चन नंबर 10 रिलेटेड है टेंस से। ठीक है, तो हमसे टेंस काफी इजी है, सबको आते हैं। 10 मार्क्स का पोर्शन आया था ये हमारा। सो देखते हैं, द फुल इम्पैक्ट ऑफ द स्ट्राइक डैश टिल नेक्स्ट वीक बाय विच टाइम प्रेजेंट स्टॉक। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है? द फुल इम्पैक्ट won't be felt, ठीक है, till next week, by which time present stocks will have been exhausted. Next, B का आंसर है, it was only after she dash English that she dash to make some foreign friends. So answer is first. B का हमारा आंसर क्या है? It was only she had learned English that she started to make some foreign friend. Was first answer is correct. For decades, researchers dash the risk predictions from string theory. The leading candidates for, यहाँ पे words missing है, fundamental understand of the universe. C का आंसर है, for decade researchers were trying to wrest prediction from string theory. The leading candidates for a fundamental understand of the universe. Next, D, we dash that this picture dash worth at least $5,500. Present perfect fill करना है, simple. Present perfect में has a plus verb की third form, correct. So D का आंसर क्या बन रहा है? We have estimated that, right? Correct. No, first is not, actually second. Present में चल रहा है ना. Estimated that this picture is worth of at least $500. Next, second answer. Next weekend, I dash my proficiency exam, so I dash more or less 300 questions so far. So correct answer is next weekend and future. For next weekend, I will have my proficiency exam, so I have अभी करना है, finish more or less 300 questions so far तक, है ना. Next F, he dash his boss that he dash back after his vacation. So F का आंसर है first. He hasn't told his boss that he won't be coming back after the vacation. कि वो नहीं आएगा after the vacation. Then G, by the time Richard dashed from the army, he dash involved in 3 separate riots. By the time उस टाइम तक Richard, ओके, क्या आंसर होगा इसका? जल्दी बताइए तो सही बच्चे. का सेकेंड आंसर बन रहा है, बाय द टाइम रिचर्ड retired from the army, he had been involved in 3 separate riots. By the time we dash our preparation for the Congress, most of the participants dash at the hall. इसका क्या आंसर होगा एच का? Yes, by the time we'll have finished, ठीक है, a presentation for the Congress, most of the participants arrives at the hall. Next, I dash Jerusalem peace for us so as to escape from the fear and loathing of the soldiers many times ever since I dashed to Israel a year ago. A year ago सीधा बता रहा है, past के लिए चल रहा है ना. इसका हमारा आंसर क्या बनेगा? Fourth, by the time I visited
Jerusalem is for it. So as I escaped from the fear thing of the soldiers many times ever since I moved to Israel a year ago. The Bastille prison, where many important people dash at one time imprisoned dash today visited tourist. जी का आंसर है बेटा जी second. Okay. The Western prison, where many people, important people had been at one time in prison, have been today visited tourists. सेंटेंस बीच में इनकरेक्ट है कॉज कुछ पोर्शन मिसिंग है. नेक्स्ट हमारे पास फिलिप्स आ जा रहे हैं बेटा. सो फिलिप्स में क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं है सो वी कैन यूज अकॉर्डिंग टू आवर ओन चॉइस. ठीक है बट मीनिंगफुल फ्रेजल वर्ब हमें फिल करना है लाइक आई एम लिविंग फॉर whom दिस टाइम. आई एम लिविंग बाय दिस टाइम भी कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट द चाइल्ड डैश हिज मदर नॉट हिज फादर. तो क्या करेंगे इसका हम. द चाइल्ड responded to his mother not his father. Okay. The new bird is playing well with her. Playing कर सकते हैं right well with her other one in the cage. Let's dash the backyard. तो हम go to लगा सकते हैं. Let's go to backyard and jump over the fence. The criminal wasn't able to dash deal with the murder. हमें सिर्फ मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना ऑप्शन नहीं है सो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन जो हम यहाँ फिल कर सकते थे राइट. नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है डू एज डायरेक्टेड है. करेक्ट. रीड एट द सेंटेंस. उन्होंने दिया है माई ग्रेट सेड टू मी प्लीज डोंट फॉरगेट टू मीट मी टुमारो. इन्होंने कहा कि मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट करो एंड बिगिन करो आई वाज. सो मैं यहाँ बोल के आपको सारे बता रही हूँ. लिसन वेरी केयरफुली. आई वॉज से स्टार्ट करते हैं कि आई वॉज रिक्वेस्टेड बाय मार्गरेट टू मीट हर द नेक्स्ट डे. राइट. नेक्स्ट है इन स्पाइट ऑफ माई वार्निंग टू देव ही इग्नोर्ड मी. स्टार्ट करना है दाव से. जो दाव बिगनिंग में लगेगा बिल्कुल दाव आई वांट देव ही इग्नोर्ड मी. नेक्स्ट it doesn't matter which chemical you put into the mixture first, the result will be the same. Use difference in the sentence. So हम कर सकते हैं कि there will be no difference in the results. ठीक है, whichever chemical you put first into the mixture, and there will be no difference in the result. Whichever chemical you put in first into the mixture. Then next है yes. I have never seen so many people in the building before. So this is start करना है. ठीक है. This is for the first time I'm seeing so many people in this building. वही हो गया. नेगेटिव है ना तो सेंटेंस पॉजिटिव कर दो. ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन में किया था राइट. Only a few books were remaining in the shelf when we left. तो most से start करते हैं. Most of the books were remaining on the shelf when we left. Correct. Correct. Most of the books were actually negative कर है ना. हाँ most of the books were not remaining on the shelf when we left. Correct. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. चलिए देन हमारे पास आ जाता है बेटा 13th. ठीक है. तो 13th में हम क्या करेंगे. आई सेड टू माई टीचर आई नीड योर हेल्प. टू का टोल्ड कर दिया. माई टीचर इन्वर्टेड कॉमा हटा के लगाएंगे दैट. आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ओनली तो वही रह गया. आई नीड का नीडेड हो गया. योर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या माई टीचर. हर हेल्प कर देंगे हम.
right? Next, he said to me, "You are lucky." So he told me that you क्या है? Second person ना change according to object. Object में क्या है? Me का subjective pronoun लगा दो. He told me that I was lucky. The children said to me, "We will go out. We will go out in the rain." Children told me that we change होगा subject है और children plural है तो they would go out in the rain. Next, the teacher said the school will remain closed tomorrow. Teacher said that inverted comma हटा के that लगाएंगे ना. The school will का कर दिया would remain closed as it is tomorrow हो गया the next day. That's it. So answer बन रहा है the teacher said that the school would remain closed the next day. It's very simple. Correct. Then last हमारा है बेटा antonium. So immense. Immense का अगर हमसे antonium पूछा जाए तो हम कह सकते हैं tiny या limited. करेक्ट. देन आ जाता है थोरो. थोरो का हम अगर एंटोनियम काफी सारे बन जाते हैं. सुपरफिशियल, कर्सरी, राइट. देन आ जाता है होलसेल. होलसेल का क्या हो जाता है? पार्शियल और सिलेक्टिवली. पार्शली या सिलेक्टिवली. देन कंज्यूम. कंज्यूम का हो जाता है हमारा एंटोनियम ऑपोजिट बताना ना. फिल. ठीक है. सेव, अपीयर. करेक्ट. देन डेलिब्रेट का क्या होगा? डेलिब्रेट का अनइंटेंशनली. इसका ऑपोजिट हो सकता है एक्सीडेंटल, अनइंटेंशनल. ठीक है. करेक्ट. केयरलेस भी कर सकते हैं हम. क्लियर स्टूडेंट्स? सो पेपर हमारा काफी इजी रहा. होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. ठीक है. तो प्लीज स्टे वेल. थैंक यू स्टूडेंट्स. लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप.